اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت! لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے۔ یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں اسلام کے، جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی۔ لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے، اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے۔ اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے
सरफराज फरमाया। क्योंकि ईमान की नेमत और दौलत दर हकीकत सबसे आला और सबसे अहम और सबसे कीमती नेमत और दौलत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान की नजात का और सक्सेस का मदार है कि कौन सा इंसान कामयाब होगा, कौन सा इंसान नाकाम होगा, कौन सा इंसान सक्सेसफुल होगा और कौन सा इंसान लॉस में रहेगा, नुकसान में रहेगा। ये दर हकीकत ईमान तय करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि अल हकीम है, ऑल वाइज है, अल अलीम है जो ऑल नोइंग है, अल कादिर है, अल कदीर है जो ओमनीपोटेंट है, जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज की ताकत रखने वाला है। इस अल्लाह ने इस कायनात को जब बनाया तो एक मकसद के तहत बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी फेल बगैर मकसद और बगैर हिकमत के नहीं हो सकता, चूंकि वो अल हकीम है, वो ऑल वाइज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया को बनाया तो जाहिर है इसके पीछे हिकमत है, इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद और हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक को भेजे जिसका इम्तिहान लिया जाएगा। और वो मखलूक कौन है? इंसान है, बनी नौए आदम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया मुतअद्दिद रिवायतों में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतअद्दिद आयतों में बयान फरमाया कि इस दुनिया में आने का मकसद एक इंसान का क्या है। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुज़ ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें और मुझे राजी करें। और इबादत का मतलब भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इबादत हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह को राजी करने की गरज से किया जाए, अजर और सवाब को हासिल करने के लिए किया जाए, और शरीयत के दायरे और शरीयत के उसूल के मुवाफिक किया जाए, वो इबादत है। इंसान की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है, एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए उलमाए किराम ने इबादत की दो किस्में बयान फरमाई हैं, एक है इबादत बिल वास्ता और एक है इबादत बिला वास्ता। एक है डायरेक्ट इबादत, मसलन अभी हमने नमाज अदा की मगरिब की, ये जो हमने रुकू किया, ये सजदा किया, कुरान की तिलावत की, इसका बुनियादी और डायरेक्ट मकसद अल्लाह की इबादत करना है कि नहीं है? इसी तरह इबादत की एक और किस्म है इबादत बिल वास्ता, किसी चीज के जरिए इबादत करना, इनडायरेक्ट इबादत जिसे हम कह सकते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, और इस नियत से खा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और ये जो कुव्वत खाने से मुझे मिलेगी मैं अल्लाह के दीन के लिए सर्व करूंगा, ये भी इबादत है। हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को शरीयत के उसूलों के तहत कर रहे हैं, नबी की तालीमात के मुताबिक कर रहे हैं, और इस नियत से कर रहे हैं कि इसके जरिए जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा इंशाअल्लाह इसका एक हिस्सा मैं अल्लाह के दीन में लगाऊंगा, अपने बच्चों और घर वालों को पालूंगा, परवरिश करूंगा, ये भी इबादत। तो एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए जो आयत शुरू में मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहने का हुक्म दिया, कुल आप कह दें, इन्ना सलाती मेरी नमाज, वनुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब के सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा दौड़ना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरे सदकात, मेरा उम्रा, मेरा हज, मेरी कुर्बानियां, सारी चीजें अल्लाह के लिए। हम तिजारत भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ताजिर की फजीलत भी बयान की ना, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो तिजारत जिसे हम समझते हैं कि भाई ये तो दुनियादारी है, ये अलग बात है कि कोई अगर तिजारत में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो जाहिर है ये गलत है और ये दुनियादारी है। लेकिन अगर तिजारत भी वो सही नीयत के साथ, सही उसूलों के साथ कर रहा है तो अल्लाह ने उस तिजारत को भी इबादत की एक शक्ल दे दी, और उस तिजारत के करने वाले शख्स जिसके अंदर यह खुसूसियात हो कि वो सच्चा हो, दयानतदार हो, अमानतदार हो, ये वो शख्स होगा कि कयामत के दिन अंबिया में से अंबिया की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए इस जिंदगी को, जबकि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हर वक्त नमाजें फर्ज नहीं की कि दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के हर मिनट नमाज पढ़ना जरूरी है। अल्लाह चाहता तो करता और उसका हक था कि वो करे, लेकिन उसने बंदों का लिहाज रखा, बंदों के तकाजों का लिहाज रखा, इंसानी फितरत का ख्याल रखा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल वास्ता इबादतें भी दे दी और बिला वास्ता इबादतें भी दे दी। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी दर हकीकत अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजरनी चाहिए, तुम कामयाब हो जाओगे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें, ये दीन जब नमाज पढ़ो तो दीन, जब बाजार में तिजारत करो तो दुनिया, जब स्कूल और कॉलेज जाओ तो दुनिया, जब मस्जिद में आ जाओ तो फिर दीन। ये कॉन्सेप्ट दर हकीकत गलत है और इस कॉन्सेप्ट ने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके नतीजे में हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, आप देखें, और दूसरी तरफ उलमाए किराम है, इनके दरमियान कितना बड़ा गैप है कि नहीं है? ये दीन और दुनिया के कॉन्सेप्ट अलग अलग, दीन और दुनिया को अलग अलग करने का नतीजा है कि इन्होंने ये समझा कि भाई इनकी जो जिंदगी है, इनके जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है वो अलग हैं, इनकी जुबान अलग, इनकी इस्तिलाहात अलग, इनका तरीका कार अलग। दूसरी तरफ उलमाए किराम जिन्होंने दीनी इल्म हासिल किया, लेकिन वो दुनिया के मौजूदा, सारे उलमा की बात नहीं कर रहा, जाहिर है बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं और नौजवानों के मसाइल को हल कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ये देखा जा रहा है कि ऐसा है मदारिस में भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं खैर के कामों में। ये जब इनके पास आ रहे हैं इन्हें बद्दीन समझ रहे हैं, वो इनके पास जा रहे हैं तो इन्हें बैकवर्ड समझ रहे हैं। ये इनके चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं, ये इनके इस्तिलाहात और इनके मकाम और मर्तबे को नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? ये खला है, ये गैप, ये दीन और दुनिया को अलग अलग करने का नतीजा है, जबकि ये दीन आया था इसी दुनिया में नाफिज करने के लिए। ये दीन कोई अलग से चंद रस्मों का नाम नहीं है, ये दीन तो दरअसल दुस्तूर हयात है, जिंदगी का दुस्तूर है, जिंदगी का तरीका है। हम इल्म कैसे हासिल करें ये दीन बताता है, हम अपनी जवानी कैसे गुजारे ये दीन बताता है, हम शादी कैसे करें ये दीन बताता है, शादी के बाद की जिंदगी कैसे गुजारें ये दीन बताता है, हम तिजारत कैसे करें ये भी दीन बताता है, हम मुलाजमत कैसे करें ये भी दीन बताता है। तो शरीयत इस्लामिया तो जिंदगी के हर शोबे का इहाता की हुई है, हमने उसको चंद इबादतों के साथ खास किया। हमने समझा कि सिर्फ नमाज रोजों का नाम जो है और मिसवाक कर लेने का नाम दीन है। यकीनन यह दीन का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कामिल और मुकम्मल दीन का मुतालबा कुरान करीम करता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए वो लोग जो ईमान ले आए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जब चाहा तब दीन पे अमल कर लिया और जब चाहा तब दुनिया और मुआशरे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अमल करने लग जाएं। ये मुतालबा क्या करता है ये दीन? कुरान करीम क्या मुतालबा करता है? पूरे पूरे दीन में आओ, मुकम्मल और कामिल मुसलमान बनो, मुकम्मल और कामिल दीन पर अमल पैरा हो। यह है मुतालबा, यह है मुतालबा। लेकिन जाहिर है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया और फिर तमाम फरिश्तों को बशमुल इबलीस को हुक्म हुआ कि अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि हजरत आदम के सामने झुक जाओ, उसने इनकार किया और क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं तो इनसे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, इसे तो मिट्टी से पैदा किया गया। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कहां से आ रहा है, इसने अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाया। ये नहीं देख रहा है कि अल्लाह क्या कह रहा है, जबकि वो इस बात का इल्म था उसके पास कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और अल्लाह की इताअत में ही कामयाबी है। लेकिन उसने महज अपनी अना के नतीजे में अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। नतीजा क्या निकला? क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जाओ अब जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ, आज से तुम मरदूद ठहरे। कुरान करीम कहता है आज से तुम मरदूद ठहरे। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कह रहा है अंज़िरनी इला यौमि युबसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दे दीजिए, कयामत तक। शैतान भी जानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगरचे अल्लाह पर गजब की सिफत गालिब है, तब भी वो इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मखलूक की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। उसने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दीजिए। मैं क्या करूंगा? लउग़वियन्नहुम अजमाइन, आदम और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। चैलेंज, ये नहीं कहा कि मैं हटाऊंगा, कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन। जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब से वाकिफ है। लउग़वियन्नहुम अजमाइन, जरूर बिजरूर उनको सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये चैलेंज किसे कर रहा है? वो अल्लाह को कर रहा है, अल्लाह को कह रहा है मैं करके रहूंगा। अब आप देखें, आपने मुझे निकाल दिया, ये था किब्र, तकब्बुर। जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए ना, वो अपने खालिक को भी भुला बैठता है। फिरौन के साथ क्या हुआ? इख्तिदार और हुकूमत का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने आप को रब डिक्लेयर किया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सरी तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मथवल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा मुझे, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे हैं, ये भी मिजाज हमारे हैं। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। यह है किब्र दीन के रास्ते से।
शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा, और यह भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं। चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कयामत तक के लिए, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की, शैतान ने उस दिन से नए नए अलग अलग हरबे और तरीके इख्तियार किए इंसानों को गुमराह करने के लिए। हर जमाने में कोई नया शोशा, कोई नया फितना वो उठाता और बड़े ही दिलकश नारों के साथ उठाता, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की इताअत से इन्हिराफ करने लग जाएं, दीन से फिर जाएं। शैतान ने कोशिशें की हर जमाने में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में अपनी जानिब से नबी को भेजा। एक तरफ शैतान कोशिश कर रहा है बंदों को गुमराह करना है, दूसरी तरफ अंबिया की कोशिश है कि बंदों को हिदायत पर लाना है, बंदों को हिदायत पर लाना है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बशुमूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन इस दुनिया में भेजे ही इसलिए गए ताकि तमाम इंसानों को गुमराही से निकाल कर अल्लाह की इताअत में लगा दे और अल्लाह की गुलामी में लगा दे। अब ये दो ताकतें हैं, शैतानी ताकत और अंबियाई ताकत, या यूं कहें कि शैतानी ताकत और रहमानी ताकत, और इन दोनों ताकतों के दरमियान हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट जारी है, कशमकश जारी है। बज़ाहिर ऐसे हालात तारीख में भी गुजरे जहां ऐसा महसूस हुआ कि शैतानी ताकतों को मुकम्मल गलबा हासिल होने वाला है। अब शायद ये रहमानी ताकत और अंबियाई ताकत शिकस्त खा जाए। हालात ऐसे संगीन हुए, ऐसे सख्त से सख्त फितने वजूद में आए, ऐसी सख्त से सख्त आजमाइशें वजूद में आई कि महसूस होने लगा कि अब ये दीन हनीफ जो है, जो सही दीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो मगलूब हो रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में ऐसे अफराद को खड़ा किया जिन्होंने अपने अपने जमाने के फितनों को कुचल कर रख दिया। आप पूरी इस्लामी तारीख को उठाकर देख लें, आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी।